All right, guys. Question number one. The list below shows some SI quantities. Underline the quantity that is not a SI based quantity. Okay. So, charge is not a base quantity. Time is a base quantity. Length is a base quantity. Current is a base quantity. So, charge, it's not a base quantity. So, पहले वाले जो A part है, that's going to be charge. अच्छा. A square solar panel with sides of length 1300 millimeter. So, 1300 millimeter is shown in figure 1.1. Light is incident normally on the solar panel. The power of the light incident on the solar panel is 750 watts. Calculate the intensity. अच्छा, intensity को हम लोगों ने power per unit area जो है पढ़ा था. So intensity is going to be power. So power is over here is 750 watts. And for this question, the area is, since it's a square, is going to be 1300 times 10 to the power of negative 3 times 1300 times 10 to the power of negative 3, because length into length is basically square, so area आ जाएगा. अच्छा जी, तो you just plug it in the formula. So 750 is going to be divided by 1300 times 10 to the power of negative 3 and 1300 times 10 to the power of negative 3. The value is going to be 443. So intensity is going to be 440 as an answer. 443, I just rounded off to 440. Moving on. The percentage uncertainty for the incident power is 3%. The uncertainty in the length of each side is 5%. Calculate the percentage uncertainty for the intensity of the light. Acha, intensity is power per unit area, so length squared. So it's gonna be percentage uncertainty of power, that's 3, plus 2 times of length, that's 5. All right, over. अच्छा, ये डायरेक्टली मिलीमीटर में दी हुई है. सो 5 प्लस माइनस 5, इसको लेंथ 1300 है. 5 डिवाइड बाई 1300 टाइम्स 100. तो इसको परसेंटेज को ऐड करना है. सो 3%, प्लस मैंने इसकी परसेंटेज निकाल ली एंड देन आई एडेड देम अप. सो इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस ब्रैकेट 5 over 1300. So 5 is basically the uncertainty divided by 1300 is the original length. तो 5 डिवाइड बाय 1300 से मेरे पास जो है लेंथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई डिड. और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज इट्स लेंथ स्क्वेयर्ड. तो डायरेक्टली जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है. सो आई एम गेटिंग माई वैल्यू इज 3.7976, 3.8%. दैट्स माई वैल्यू. फिर से देख लीजिएगा, पावर ओवर लेंथ स्क्वेयर था, तो परसेंटेज ऑफ पावर प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ लेंथ होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं. तो हमारे पास जो है 2 टाइम्स, बेसिकली मैंने इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है. बहुत सारे बच्चे 2 टाइम्स डायरेक्टली 5 करते हैं. मैंने भी एक सेकंड के लिए ये सोचा, बट नहीं, ये मिलीमीटर है, ये परसेंटेज नहीं है. ठीक है, तो डोंट मिस दैट एंड डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. ओके, द यूजफुल पावर आउटपुट फॉर द सोलर पैनल इज 160 वॉट्स. अच्छा जी, calculate the percentage efficiency. So efficiency is going to be useful power output over total power input, that was 750 watts, and then again you have to times it by 100. So 160 divided by 750 and then times it by 100, you would get the percentage efficiency as 21.3%. So just 21%, I guess, pretty much it. Okay, last but not the least, another square solar panel is placed so that light of the same intensity is incident normally on it. The new panel has a shorter sides than its original panel. The new panel has the same power output of the original panel. Straight and explain whether the efficiency of the new panel is greater than, less than, or the same as the efficiency of the original panel. अच्छा, देखिए यार, अगर मैं वो कह रहा है कि हमारे पास एक पैनल था, उसमें जो इंसिडेंट पावर थी वो 750 वॉट्स थी, एंड लेट्स से मैं अब ये पैनल का साइज रिड्यूस कर दूंगा, तो डेफिनेटली इंसिडेंट पावर 750 नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रिड्यूस हो गया है एरिया, जो है उसने बताया हुआ है कि शॉर्टर साइड्स हैं. तो जब उसका एरिया जो है लेस देन 750 होगा और उसके बावजूद, सॉरी, जो पावर है उसके ऊपर इंसिडेंट वो लेस देन 750 होगी,
तो लाजमी सी बात है द पावर आउटपुट इज सेम, तो डेफिनेटली वो कम पावर में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक इमेजिनरी वैल्यू लूँ, 500 में से अगर ये अराउंड सेम पावर आउटपुट 160 वॉट आउटपुट दे रहा है और ये 750 में से 160 वॉट आउटपुट दे रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी रिलेटिवली ज़्यादा है। सो द आंसर शुड बी अराउंड दिस लाइन्स के yesterday and explain whether the efficiency of the new panel will be greater than efficiency would be greater efficiency would be greater। इसकी रीजनिंग जो आप ऐसे दे देंगे एज साइड्स आर स्मॉलर, area is smaller, therefore incident power would be less, and since same output power for both panels, क्योंकि सेम आउटपुट है बोथ पैनल्स का, यू कैन क्लियरली से कि efficiency for the smaller panel is more, efficiency for smaller panel is more। So the answer would be over here, around 3 marks आपको मिल जाएंगे। This is going to be question number 1, right? Question number 2. Skydiver jumps from an aircraft at time t equals 0. So the skydiver basically jumps off the aircraft at time 0, falls vertically downwards. The variation with time of her velocity is shown in figure 2.1. State the terminal velocity of the skydiver। अच्छा जी, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है एंड द टर्मिनल वेलोसिटी इज 39। सो टर्मिनल वेलोसिटी 39 मीटर्स पर सेकेंड है, जहाँ पे स्पीड का बढ़ना ख़त्म हो चुका है एंड द लाइन इज स्ट्रेट। वेरी सिंपल, by drawing a suitable line on figure 2.1 determine the acceleration of the skydiver at time t equals 9। अच्छा, टाइम 9 सेकेंड्स पे जो है हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालनी है। सो बेसिकली वी हैव टू मेक अ टेंजेंट ओवर हियर। सो दिस इज द पॉइंट जिधर टेंजेंट बनाना है। ठीक है जी, आपने जो है 2 पॉइंट्स ले लिए, मैं एक ये कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 0 and 26। one coordinate should be this one, I guess that's 15 and 41। so आप again gradient निकाल लें, 41 minus 26 over 15 minus 0, so you would get 41 minus 26 divided by 15 minus 0, आपके पास जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। So 41 minus 26, that's 15 over 15, so it will be 1 meter per second squared। So 1 meter per second squared is going to be your acceleration in this one। ठीक है जी। The mass of the skydiver and her equipment is 68 kilograms. The upthrust on the skydiver is negligible. After reaching terminal velocity, the skydiver opens the parachute at time t equals 1 or t1. The total drag force of 1800 Newton acts on the skydiver. Determine the direction of the resultant force or acceleration। Sorry, अच्छा, F is equals to ma, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास से एक्सेलरेशन आ जाएगी, पर रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं। जब एक पैराशूट ओपन होगा, ठीक है जी, तो डेफिनेटली उस पर जो अप ड्रैग फोर्स है दैट वुड बी मच बिगर। सो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी दैट वुड बी ड्रैग माइनस वेट। ड्रैग हमारे पास जो है वो सवाल में 1800 दिया हुआ है। वेट वुड बी मास इनटू ग्रेविटी। आपने जो है रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। सो रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 1800 minus 68 times by 9.81, which would be equivalent to 1132। So resultant force is going to be equal to 1132.9, so 1133 कह लेते हैं इसको। F is equals to ma, resultant force 1133 है। In this make sure that this resultant force is in upward direction। तो
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी क्योंकि ड्रैग अपवर्ड ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है। मास इज गोइंग टू बी 68, the value for the acceleration is going to be 16.6, that's 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन आ रही है, मैग्नीट्यूड 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द पैराशूट फुली opens at time t2, at a later time t3 the skydiver reaches a constant velocity of 5.7। ठीक है जी, स्काई डाइवर कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर गया, अगेन टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया होगा। डिटरमाइन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हर एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 2 एंड टाइम 3। शार्प, देखो यार, T1 पे हमारे पास जो है पैराशूट ओपन हुई, बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रैग हुई, इवेंचुअली जब स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो एकदम से स्पीड जो है कम होते होते फिर आराम आराम से जो है स्पीड एक्सेलरेट करते करते स्पीड कांस्टेंट डिक्रीज कर देगा। पहले स्पीड ज़्यादा होगी और इवेंचुअली जो है स्पीड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते होते फिर 5.7 पे स्टॉप हो जाएगा। पैराशूट ओपन होते ही स्पीड एकदम 5.7 नहीं हो जाती, टेक कपल ऑफ सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स इंडीड। तो पहले स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, देन अगेन एकदम पैराशूट खुलता है तो स्पीड लेट्स से 100 से 20 आती है, देन 18, 16, 15 करके इवेंचुअली इट कम्स टू अ स्टॉप एट वट एवर द स्पीड लाइक जिस पे पैराशूट ओपन हो जाता है। तो हमारे पास मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एज द स्पीड डिक्रीजेस डेफिनेटली ड्रैग वुड ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि वेट चेंज नहीं हो रहा ना, ड्रैग डिक्रीज होगा, लाजमी सी बात है। डिक्रीज, जब ड्रैग डिक्रीज होगा इवेंचुअली at T3 drag and weight will be equal, hence acceleration is 0। ये आपके पास जो है इसका आंसर होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, मैंने क्वेश्चन को एक बार गौर से देखा तो आप ये भी ऑब्जर्व करें that the question states that it's just about the acceleration, तो drag would decrease, hence acceleration would decrease। यहाँ पे hence acceleration would decrease, acceleration जो है पहले कम होगी, eventually at T3 when weight is equal to drag, acceleration will be 0। तो आपने दोनों पॉइंट्स में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किस तरह वेरी हो रहा है, इवेंचुअली डिक्रीज और वो रीच 0 हो जाएगी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन बेसिकली आप इसको डिसेलरेशन की नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही ना, क्योंकि वो रिजल्टेंट फॉर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो 17 है ना, ये बेसिकली आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है, अलाउड होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आपके पास अपवर्ड फोर्स की बात हो रही है। तो वो चीज़ बेसिकली उसकी स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो बेसिकली इट्स लाइक रिडक्शन ऑफ स्पीड। तो इस एतबार से जो एक्सेलरेशन इवेंचुअली 0 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके, लास्ट में क्या बोलता है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी mv माइनस mu। ओके, हमारे पास टाइम T1 पे T1 एंड T3, तो T3 पे वेलोसिटी 5.7 है एंड टाइम T1 पे 39। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद ही कहानी हो रही है। Opens the parachute at T1, so T1 is going to be the terminal velocity, that's 39। So T1 is basically the terminal velocity। ठीक है, the terminal velocity after reaching the skydiver opens at time T1। So mass is going to be again 68, I guess, yes, 68। So m final velocity is, I guess, 5.7, yes, minus 68 times 8 by the value of 30, क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, 39 है, ठीक है, 39। तो ये सारी वैल्यूज जस्ट प्लग इन कर दो, 68 times it by 5.7 and then answer going to be subtracted by 68 and then times it by 39। your value is going to be 2300। so change is going, momentum is going to be 2300, but negative, I think negative है, सही है। moving on, that's all for question number 2। occurs when a charge buildup
in the atmosphere, creating a potential difference between the ground and the atmosphere. During a lightning strike, there is an average current of 3.3 times 10 to the power of 4 amperes for the time of 2.6 times 10 to the power of negative 5 seconds. Calculate the charge transferred during the lightning strike. अच्छा, Q is equals to IT का formula. Since you need the charge current आपके पास given है 3.3 times 10 to the power of 4 multiplied by 2.6 times 10 to the power of negative 5. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का जो है ये पहला पार्ट है. You just have to multiply the values. Make sure कि आप सही सही exponentials plug in कीजिएगा. 0.9 0.86 coulombs आपके पास चार्ज आ रहा है. अच्छा जी, चार्ज आ गया. ठीक है जी. ओके. The potential difference between the ground and the atmosphere is this. Calculate the power. अच्छा, power is equals to IV. Average power निकालनी है in gigawatts. अच्छा, gigawatts. So current हमारे पास दिया हुआ है, that is 3.3 times 10 to the power of 4, and the voltage is 3 times 10 to the power of 7. So again, very straightforward, very straightforward. There's nothing to be worried about. बहुत मुझे ये वाला पेपर जो है relatively easy लगा compared to the 2-1 पेपर. वो भी खैर बहुत आसान था, बट रिलेटिवली ये उसके भी मुकाबले में ज़रा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अच्छा, a lightning rod is attached to a tall building to conduct charge safely to the ground. The lightning rod is modeled as a uniform cylindrical copper cable of length 95 meters. अच्छा जी, यहाँ पे एक 95 meters की लेंथ है that runs from the ground to the top of the building as shown. ठीक है जी, एक 95 meters की लॉर्ड है. Okay, the resistance of the lightning rod is 9.6. अच्छा, resistance दी हुई है, resistivity दी हुई है. Again, definitely resistivity का formula लगाएंगे and determine the radius. अच्छा, so resistivity is going to be resistance is going to be rho L over A. ठीक है जी, तो resistance is 9.6. Resistivity is 1.7 times 10 to the power of negative 8. अच्छा, मैं एक ब्लंडर मार गया था. गीगावाट है, तो गीगा इज 10 to the power 9. ठीक है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. 9.9 10 to the power 11 की जगह 990 गीगावाट्स इसको लिखेंगे. ठीक है, दैट्स वन थिंग. ठीक है. अच्छा, लेंथ हमारे पास ऊपर दी हुई है सवाल में, दैट्स 95 meters. और जो एरिया है दैट उसको पहले निकाल लेते हैं. सो एरिया वुड बी 1.7 times 10 to the power of negative 8 multiplied by 95, and the answer should be divided by 9.6. The value is 1.7 10 to the power 7. So 1.7 times 10 to the power of negative 7. Area is going to be equal to pi r squared. So pi r squared is going to be equal to 1.7 times 10 to the power of negative 7. इसको डिवाइड करते हैं पाई से एंड देन जस्ट स्क्वायर रूट दैट. आपके पास रेडिया आ जाएगा 2.3 टाइम्स 10 to the power of negative 4 meters. तो ये आपका रेडियस आ रहा है. अच्छा, the radius of the copper lightning rod is doubled with no charge to its length, with no change to its length. Sorry, state and affect the on the charge change in resistance of the lightning rod. State the effect on of this change in the resistance. such अगर मैं एरिया को डबल कर रहा हूँ, रेडियस को डबल कर रहा हूँ, तो इफ द रेडियस इज डबल्ड, तो याद रखिएगा कि अगर रेडियस आर है और हमारी रेजिस्टेंस आर है, अगर मैं रेडियस डबल करूंगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है दैट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. तो रेजिस्टेंस क्योंकि स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. अच्छा, a section of the lightning rod of length 0.12 meters is removed for testing. A tensile stress of 1.9 times 10 to the power of 6 pascals is applied as shown in figure 3.2. आपके पास tensile stress दिया हुआ है. The section of the rod obeys Hooke's law. The Young's modulus of the copper is given. Calculate the extension. अच्छा जी,
यंगसन मॉडुलस बेसिकली इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, एंड यंगसन मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस टाइम्स इट बाय, अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ, स्ट्रेस हमारे पास दिया हुआ है, जैसे स्ट्रेस हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है दैट्स 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6, और जो एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास स्ट्रेन होती है, सो ओरिजिनल लेंथ इज 0.12, वेर एज जब इतना कुछ लिख रहे हैं तो यंगसन मॉडुलस की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11. सो अगेन आपने सिर्फ 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 इक्वल्स टू 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 ओवर ई. क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, एक्सटेंशन जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, and then the answer should be divided by 1.3 times 10 to the power of 11. तो एक्सटेंशन जो आ रही है 1.8 times 10 to the power of negative 6. I think that's pretty much it for question number 3. A pinball machine uses a spring to launch a small metal ball of mass 4.5 times 10 to the power of negative 2 kilograms on upper ramp. The spring is compressed by 10 times 10 to the power of negative 2 meters and held in equilibrium. Acha, the ramp is at an angle of 15 degrees. The spring obeys Hooke's law with a spring constant of 29. Calculate the elastic potential energy of the compressed spring. ठीक है, very straightforward. Elastic potential energy जो होती है that is given by half of kx squared 1/2 spring constant 29 given है, ठीक है. एक्सटेंशन कंप्रेशन दी हुई है दैट्स 8 times 10 to the power of negative 2, so 8 times 10 to the power of negative 2 squared. अच्छा, फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस जिसमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में गिवन है, ठीक है, एंड 10⁻⁻2 में गिवन है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग आंसर को भी जो है 10⁻⁻2 में, -3 में इस तरीके से ही स्ट्रेट करें. कैलकुलेशंस में मिस्टेक के चांसेस जो हैं दे आर क्वाइट रिड्यूसेस. तो ये हमारे पास जो है 1/2 टाइम्स, अच्छा जी, तो मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है एक सेकेंड, 1/2 टाइम्स इट बाय 29 टाइम्स इट बाय 8 bracket 8 times 10 to the power negative 2 and then square that is coming as 9.3 times 10 to the power of negative 2. ठीक है, बेसिकली 9.28 आ रही है, सो 9.3. अच्छा, the spring is released and expands quickly back to the original length. Calculate the increase in gravitational potential energy. अच्छा जी, स्प्रिंग रेट, ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ से बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आ गया, ठीक है. इस स्प्रिंग में इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे ये वाली हाइट चाहिए होगी. दिस एंगल इज गिवन एज 15 डिग्रीज, तो जो डेफिनेटली ये वाली हाइट हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 8.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ negative 2 sin 15, क्योंकि वो है एंगल के सामने वाला कॉम्पोनेंट है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट है. mgh, so mass is given as 4.5 times 10 to the power of negative 2. Mass है, gravity is going to be 9.81 and the change in height is going to be 8 times 10 to the power of negative 2 sin of 15. पूरी चीज़ को एज इट इज प्लग इन कर दें कैलकुलेटर में. 4.5 टाइम्स 10 to the power of negative 2 multiplied by 9.81 and then multiplied by 8 then 10 to the power of negative 2 multiplied by sine of 15. Your value is going to be 9.2 times 10 to the power of negative 3. ठीक है, 9.14 9.2 times to the power of negative 3. ठीक है, ये आपकी इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. The ball leaves the spring when the spring reaches its original height. ठीक है, assume that all the elastic potential energy of the spring is transferred to the ball. अच्छा, सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो रिमेनिंग थी वो बॉल पे ट्रांसफ़र हो गई. अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में से अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूंगा, सो दैट एनर्जी वाज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन. इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बीच में माइनस करना लाजमी होगा. सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. सो 9.3
times 10 to the power of negative 2, and then subtract that from 9.2 times 10 to the power of negative 3 is equals to 1 over 2 mass times velocity speed squared. 9.3 times 10 to the power of negative 2 minus 9.2 times 10 to the power of negative 3, and then multiplied by 2 divided by the mass 4.5 10 to the power of negative 2. ठीक है, and then whole thing rooted. ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में सब कर दिया. ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं. 9.3 times 10 to the power of negative 2 minus 9.2 times 10 to the power of negative 3 divided by 4. 1 second, guys. 9.3 to the power of negative 2 minus 9.2 times 10 to the power of negative 3. Whole thing divided by 4.5 10 to the power of negative 2. अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप ही कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में जो है ना डालने में अच्छी खासी ब्रैकेट्स वगैरह की जो है अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है. उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको गलती के चांसेस हैं. ठीक है, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ हैं. मैंने जो है गलती कर दी, बुकत रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा. अच्छा, ये यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट लगा दूँ. माई आंसर दैट आई एम गेटिंग इज 1.93, सो 1.9 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब बहुत एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ लगेगा, फिर आखिर में लगेगा, तो अच्छा खासा है. अच्छा, द बॉल कम्स टू रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैप डोर of negligible mass at distance d from its pivot. The force F acts vertically downwards at a distance of 2 centimeters from the pivot as shown in figure 4.2. The trap door is in equilibrium with the F when F is 1.7. Calculate D. अच्छा, principle of moments, sum of clockwise moments is going to be equal to sum of anti-clockwise moments. Equilibrium में मैं यहाँ solve कर रहा हूँ. Force F into 2 centimeters is equal to weight into d. ठीक है, weight निकालना पड़ेगा. So 1.7 times 2 times 10 to the power of negative 2 force into distance is equal to weight के लिए 4.5 times 10 to the power of negative 2 बॉल का मास था. इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिस्टेंस इज d. ठीक है, अगेन ये तो खैर डल जाएगा कैलकुलेटर में. 1.7 times 2 times 10 to the power of negative 2 and then divided by 4.5 times 10 to the power negative 4, 2 multiplied by 9.81. Your value of distance is going to be 0.077. 7.7 times 1, 2, 10 to the power of negative 2. So 7.7 times 10 to the power of negative 2. Okay, the force F decreases from 1.7. अच्छा जी, force की magnitude को कम करूँगा. State the direction of the resultant movement. Definitely अगर मैं ये force कम करूँगा तो the ball would topple to the right. So the direction of resultant movement would be clockwise. That's it for question number 4. अच्छा, question number 5 में क्या बोलता है? The state Kirchhoff's second law. तो Kirchhoff's का second law ये state करता है that in a closed loop sum of all EMF is equal to the sum of potential difference in the circuit. in बस क्योंकि इन लूप लिख दिया तो बस इसको एज इट इज ही रहने देते हैं. ठीक है, EMF जो है वो सारे के सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होते हैं. अच्छा, the battery of the electromotive force 9 volts is of negligible internal resistance is connected in series with the variable resistor X and the thermistor Y. Figure 5.1 shows the relationship between temperature and resistance for the thermistor. Okay,
The current in the circuit is given, the potential difference is given. Calculate the resistance of x. V equals IR. ठीक है, I guess it's very simple. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y दिया हुआ है और x का निकालना है. ठीक है, y का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट से, तो x का पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली 5 वोल्ट्स होगा क्योंकि डिवाइड होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो बैटरी तो कोई वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रही. 5 is going to be equal to 1.1 times 10 to the power of negative 2 multiplied by resistance. So 5 divided by 1.1 times 10 to the power of negative 2. आपकी जो रेजिस्टेंस आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 450 ohms. ठीक है, 454 आ रही है बट इसको जो है हम लोग 2SF पे लिखेंगे तो 450 ohms. ठीक है. अच्छा, द टेम्परेचर y चेंज टू 190. Calculate the resistance. The resistance of x remains unchanged. ठीक है. Determine the new potential difference across y. अच्छा, 190 पे रेजिस्टेंस जो है इसकी 25 है. ठीक है. अच्छा, V इज इक्वल्स टू आई आर. करंट निकालने के लिए सबसे पहले तो करंट निकालते हैं. करंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं V इज इक्वल्स टू आई आर ही यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, बट मैं टोटल वोल्टेज यूज़ करूँगा 9 वोल्ट्स का और रेजिस्टेंस भी टोटल यूज़ करूँगा 450 हमारी क्योंकि अनचेंज्ड है एंड विद दैट 25 इसकी आई है. सो 9 डिवाइडेड बाय 470 5 माई वैल्यू ऑफ करंट इज गोइंग टू बी 1.8 times 10 to the power of -2. अच्छा, अब मुझे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है y के अक्रॉस. तो v इज अननोन, मेरे पास y का करंट क्योंकि सीरीज सर्किट है सेम रहेगा एंड द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 25 जस्ट फॉर y. ठीक है, तो मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. आई वुड गेट the value as 470 times 10 to the power of -3. बहुत ही छोटा वोल्टेज आ रहा है. Nine divided by 5, 475. ठीक है भाई, यही वोल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, दैट्स लाइक रियली रियली लो. अच्छा, द रेजिस्टेंस x इज इंक्रीज्ड. द रेजिस्टेंस ऑफ x इज इंक्रीज्ड. x की रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ. ठीक है जी, डेफिनेटली इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा. अच्छा, by reference to the current in the circuit is stated and explain the effect of this change if any on the potential difference across y. अच्छा जी, देखो जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा और टोटल करंट भी कम होगा क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो या द आंसर वुड बी अराउंड दीज लाइंस के एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एज रेजिस्टेंस ऑफ x इंक्रीजेस, सबसे पहले होगा क्या, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंबाइंड या फिर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, hence current decreases and potential difference across y also decreases. पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस उसका जब बढ़ जाएगा तो उसके अक्रॉस x के अक्रॉस बढ़ जाएगा तो PD अक्रॉस x जो होगा वो बढ़ेगा और PD अक्रॉस y जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, that's pretty much it for question number 5. Light of single frequency is incident normally on a diffraction grating. An interference pattern of the bright light and fringes formed on a semicircular screen shown in figure 6.1. The light has a wavelength of 520 nanometers. The separation of the line in the grating is this. Determine the total number of fringes formed on the screen. अच्छा, if you remember the fact कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था that d sin theta equals n lambda, where d was the diffraction grating या just grating spacing
तो 3.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -6, हम लोग 90 रखते हैं क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, इक्वल्स टू हमें n की वैल्यू नहीं पता एंड द वेवलेंथ इज गिवन एज 520 नैनोमीटर्स. So 3.8 times 10 to the power of -6, sin 90 is 1, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. And the answer should be divided by 520 times 10 to the power -9. Your value is going to be 7.3. So n की वैल्यू 7.3 है. दैट शोज कि इस तरफ हमारे पास 7 लाइंस जो है बन रही होंगी. सिमिलर n इक्वल्स टू 7 इधर भी होगा, और ये हमें बीच वाली लाइन का जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का नहीं बताता. तो इन टोटल वी वुड हैव 14 एंड देन 1 15 टोटल फ्रिंजेस दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड. So 7 plus 1 and the total number of fringes would be 15 in this case. अच्छा. The light is replaced with red light of a single frequency. State whether the frequency of the red light is greater than or less than or the same as the frequency of the original light. अच्छा, V is equals to F lambda. Speed same है. ओके सो ठीक है. अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन लेस देन और सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लाइट. ओरिजिनल लाइट जो थी हमारे पास 520 नैनोमीटर्स की थी, और हमारे पास रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है 520 से ज़्यादा होती है. द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज़ लेस एंड द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ रिलेटिवली मोर. तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के अतबार से तो डेफिनेटली हमारे पास लेस देन द ओरिजिनल लाइट. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट की होती है. रेड हैज़ रिलेटिवली हायर वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस. ठीक है. तो विद ऑन दैट नोट हमारे पास जो है आगे लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, Sit and explain the effect of this change on the number of bright fringes formed on the screen. अच्छा, d sin theta is equals to n lambda कर लेते हैं. sin 90 है, d equals to n lambda, या n is basically equal to d over lambda. So if you increase the wavelength, then definitely the number of fringes would reduce, क्योंकि separate ज़्यादा हो जाएंगी और फ्रिंजेस की जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो कम परफॉर्म हो रही होंगी. तो स्टिल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द चेंज इन ब्राइट फ्रिंजेस. सो ब्राइट फ्रिंजेस वुड रिड्यूस नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस वुड रिड्यूस. ठीक है, कम होंगी ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, एज रेड लाइट हैज हायर वेवलेंथ, less fringes will be formed. On that note, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 7, a particle Q and R each composed of one quark and one antiquark. State the name of the class group of particle that includes Q and R. So quark and antiquark. So antiquark and quark both comes under hadrons. So hadrons is going to be the class group. Q has a charge of -e, where e is the elementary charge. R has a charge of 0. Complete table 7.1 to show the possible second quark in each of Q and R. So हमारे पास Q जो है -1 बनाना है. एक स्ट्रेंज होता है -1/3. सो एंटी अप इसके साथ हो सकता है, दैट वुड बी -2/3e. अच्छा जी, अगर ज़ीरो चार्ज बनाना है सो एंटी अप के लिए अप हो सकता है. तो प्रीटी मच आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है, तो ये आपके पास जो है पूरा पेपर जो है मई जून 2024 पेपर 2 कम्स टू एन एंड. थैंक यू.